Hello, Namaste, Sastyakar, Vanakkam, and very good morning to one and all, and welcome back to our channel that is A Square Classes. Today we are moving on towards the very next session of your chapter 11, that is Transport in Plants sessions chapter we are going to see. And today, last class, before I will tell you what I'm going to teach you today, let me recall you. Previous class I have taught you what is transpiration, what are the factors which affecting the transpiration, and now I'm going to teach you, or now I'm going to tell you what are the different variants which also affect the transpiration, and some facts about the transpiration. How do there is, have you ever heard there is a concept that is called as anti-transpirants? These anti-transpirants are the substances which usually stops the transpiration, or which usually lowers the transpiration. Such substances are called as anti-transpirants. Similarly, how do we measure the transpiration? आप बेटा जब भी आप शीट सॉल्व करोगे या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, आपको एक वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन मिल जाता है. ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज सो एंड सो. सो उसको हम लोग पोटोमीटर कहते हैं. समझ में आया? एंड दैट्स ऑल फ्यू फैक्ट अबाउट ट्रांसपिरेशन वी आर गोइंग टू सी. देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स अ वेरी ब्यूटीफुल concept that is called as long distance transport. How do this long distance transport take place, and what are the pathway which follows this long distance transport? In that very wellly I'm going to teach you what apoplast and symplast pathway. Clear? So give the heading as some facts about transpiration. Dena beta, some facts about, what are the some facts about transpiration? Let's see it. So now I said we are going to see a beautiful concept that is anti-transparent, and I said you what is anti-transparent? Anti-transparent are those substances which reduce. What does it reduce? It reduces the transpiration. Make a note and write it down. Anti-transparents are those substances which reduce the rate of transpiration. Clear? And why these anti-transparents are used? These anti-transparents are basically used for dry farming. इनकी जो basic requirement और basic use होती है बेटा जी, it is used for what? It is used for dry farming और वैसी farming जो कि dry वेरी ड्राइड एरियाज पे किया जाता है, जहां पे वाटर का रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू अदर क्रॉप कम होता है. समझ में आया बेटा? सच टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड एज ड्राई फार्मिंग. एंड व्हाट आर दो सब्सटेंसेस? द वेरी फेमस एंटी ट्रांसपेरेंट इज PMA, विच इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट. अगर आप लोग लिखना चाहो तो इसको PAMA के फॉर्म में लिख सकते हो. अनदर वेरी फेमस एंटी ट्रांसपेरेंट इज बेटा जी, दैट इज एस्पिरिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज salicylic acid. Aspirin is also called as salicylic acid. तो क्वेश्चन में अगर आपको salicylic acid दे दे एज एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में, तो बेटा जी कंफ्यूज नहीं होना है. क्यों? क्योंकि दे बोथ आर सेम, दे बोथ हैव सेम केमिकल कंपोजिशन. समझ में आया? अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंटी ट्रांसपेरेंट इज ABA. बताओ बेटा जी व्हाट इज ABA? फटाफट लाइव चैट में कमेंट करो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बिकॉज आई नो आई हैव टॉट यू. बेटा पोटेशियम पढ़ा था. हाउ डू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, पढ़ा था? याद आया कुछ? क्यों पढ़ा था? सो व्हाट इज दिस ABA? मॉडर्न थियरी कहती है कि ABA के कंपोजिशन की वजह से ही स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग फर्दर मोस्ट होता है. याद आया कुछ? एंड व्हाट वाज दिस ABA? दिस वाज एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड. क्लियर? ओके. एंड अनदर वन इज सिलिकॉन ऑयल. फिर आप लोग CO2 या फिर लो विस्कोसिटी वैक्स याद कर लो, या फिर ऑक्सीइथिलीन. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं जो कि लिटरली ट्रांसपिरेशन या रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं. इस चलो ये तो हो गई बेटा कुछ फैक्ट की व्हाट इज एंटी ट्रांसपेरेंट्स और इनका काम क्या होता है, इनके यूज क्या होते हैं, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं. हमने एग्जांपल्स देख लिए. एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड. मैं आपको एक अच्छा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ जिसका नाम है ट्रांसपिरेशन रेशियो. क्या नाम है इसका? ट्रांसपिरेशन रेशियो. आपको मैंने एक, अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद होगा तो मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी बच्चा. CO2 plus H2O will give C6H12O6. याद आया कुछ? ब्लू कार्बन डाइऑक्साइड बच्चा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, एंड इसी को विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट. याद आया कुछ?
से ही अपना खाना ग्लूकोज बनाते थे, फिर वाटर वगैरह एक्सेस अमाउंट ऑफ रिलीज होता था। तो बेटा जी कंजम्पशन ऑफ CO2 एंड H2O हुआ अगेन, और इफ यू सी देयर इज लॉस ऑफ वाटर अगेन, आप देख लोगे कि कुछ अमाउंट ऑफ पानी बाहर जाता है। तो कैन यू सी दैट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एज वेल एज देयर इज लॉस ऑफ वाटर, बट देयर इज ओनली फिक्स्ड, यानी देयर इज ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, देयर इज ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ CO2। CO2 कभी लॉस नहीं होता, CO2 कंज्यूम्ड हो रहा है। सो इस प्रोसेस को जब CO2 कंज्यूम हो गया ना, उसी को हम लोग फिक्स्ड बोलते हैं। और अगर अपने टर्न में बात करूं, जब आप 12th में आओगे तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी जिसको हम लोग CO2 फिक्सेशन कहते हैं, कार्बन साइकिल कहते हैं। उसमें हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं। जिस अमाउंट में नाइट्रोजन यूज हो जाता है, जिस अमाउंट में CO2 बेटा यूज हो जाता है सेल के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, उसी को हम लोग फिक्सेशन कहते हैं। समझ में आया? सो ये CO2 अब क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, बट ये वाटर तो कंज्यूम हो रहा था, बट साइड बाय साइड देयर इज आल्सो लॉस ऑफ वाटर। एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड। सो इस CO2 का द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर एंड ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड CO2 फिक्स्ड, यहाँ पे जो CO2 लॉस फिक्स्ड हो रहा था बेटा, और यहाँ पे जो वाटर लॉस हो रहा था, सो लॉस ऑफ वाटर बाय फिक्स्ड CO2, इसी रेशियो को हम लोग ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? ट्रांसपिरेशन रेशियो। लॉस ऑफ वाटर विथ कंपेयर टू कितना CO2 फिक्स्ड हुआ, उस रेशियो को हम लोग ट्रांसपिरेशन रेशियो कहते हैं। उसको मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रिक्वायर्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर। बेटा जी ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये H2O है। क्लियर? समझ में आया? आप लोग कहोगे यस मैम। और ये जो ट्रांसपिरेशन रेशियो होता है बेटा, ये सबसे लो होता है फॉर C4 प्लांट्स। व्हाई? बिकॉज C4 प्लांट रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और उनका जो रेशियो होता है इट कम्स इन बिटवीन ऑफ 200 to 350। इन बीच का इनका जो रेशियो होता है वो इतना होता है। आप लोग बोलोगे यूनिट, बेटा कैसा यूनिट? ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, दोनों कैंसल, कुछ बचा यूनिट के लिए? हम लोग एंड ऑफ द डे मोल मोल का रेशियो ले रहे हैं ना बेटा, कुछ बचा क्या? बिल्कुल नहीं बचा। आप लोग कहोगे यस मैम नहीं बचा, आप जो बोलते हो सब सही है। सही है, सही है, जो मैं बोलूँ सब सही है, ठीक है, समझना। फिर उसके बाद ये जो होता है ये हाई होता है, किसके लिए? C3 प्लांट्स के लिए बेटा ये हाई होता है। C3 प्लांट्स को ज्यादा वाटर लॉस करते हैं वो, तभी तो मैंने आपको पढ़ाई थी ये चीज जब हमने फोटोसिंथेसिस। और नहीं जिन्होंने पढ़ा रिपीटर वाले, वो फिर से पढ़ लेना मेरे से, मैं पढ़ाऊंगी आपको आगे का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज C3 प्लांट, व्हाट इज C4, C साइकिल, केल्विन साइकिल, सारी चीजें आएंगी विथ मेरे साथ ही आएंगी, ठीक है। चलो सो आप अभी के लिए याद रख लो, जिनको जो फ्रेशर्स हैं 11th वाले और जो रिपीटर हैं उनको तो पता ही होगा व्हाट इज C3 एंड व्हाट इज C4 प्लांट, और वो कितना होता है 500 to 1000। और जिनको याद नहीं है वो मॉर्फोलॉजी के चैप्टर्स याद करें, ठीक है। चलो एंड कैंप प्लांट में भी वो मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम वो प्लांट में होता है जो होता है 50 to बेटा जी 100, 50 to 100 के रेशियो में ये कैंप प्लांट में इसका जो ट्रांसपिरेशन रेशियो है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट बच्चा? आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन रेशियो। एंड यू नो देयर इज xerophyte stomata आर sunken, ये आपको याद रखना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। xerophytes में स्टोमाटा किस तरह का होता है? तो बेटा xerophytes में स्टोमाटा sunken होता है। to why they do have sunken structure? To minimize the loss of water, so that water is less and less minimized by them and maximum amount of water is stored by them, so that they can utilize it whenever there is a high temperature or whenever there is a arid region। accepted? एक और छोटा सा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, जो डॉक्टर सर कर्टिस ने कहा था। मिटा दो इसको, चलो समझना बेटा। डॉक्टर कर्टिस सेड दैट ट्रांसपिरेशन इज एन इसेंशियल एविल। ये जो होता है ट्रांसपिरेशन, ये इसेंशियल एविल होता है। व्हाई डिड ही सेड दैट? डू यू हैव एनी कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? कर्टिस साहब ने, डॉक्टर कर्टिस ने ऐसा क्यों बोला? उसने बेटा इसलिए बोला, अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो तो बहुत सारी चीजें रुक जाती है। क्या होता है मैम ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन तो सिर्फ लॉस ऑफ वाटर के लिए होता है, अभी तक आप पढ़ा रहे हो मैम। देन व्हाट इज द बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी तो वो पोर से होता है, ट्रांसपिरेशन से ही होता है ना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? और भी चीजें, अगर CO2 मिलता है तभी तो प्लांट फूड बनाता है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है?
अगर फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रांसपिरेशन जरूरी है? आप लोग कहोगे यस मैम जरूरी है। सो कर्टिस ने ये चीज कहा था, ये जरूरी है, इट इज इसेंशियल। और ये क्यों इसेंशियल है, मैं आपको कुछ स्टेप्स और कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी अभी, जस्ट इसके बाद फिर आपको और समझ में आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रांसपिरेशन इज वेरी मस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चा, तो समझना, अकॉर्डिंग टू कर्टिस ट्रांसपिरेशन इज एन इसेंशियल। एविल, एविल क्यों बोला अब उसने एविल इसलिए बोला बेटा जी, लिख लेना, जिसको जो सी लैंग्वेज समझ में आती है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी एक्सेट्रा, तमिल एंड ऑल, जो लैंग्वेज में लिखना लिख लो। उसने इसीलिए एविल बोला क्योंकि व्हाट अबाउट ज़ेरोफाइट्स, व्हाट अबाउट ड्राई प्लांट, उनके में अगर ट्रांसपिरेशन एक्सेस होने लगा इसेंशियल होने के बावजूद, इजंट इट हार्मफुल फॉर देम? एक तो बेटा उनको पानी नहीं मिलता, दे आर प्रेजेंट इन ड्राई एरियाज, दे आर प्रेजेंट इन एरिड एरियाज, ऊपर से उनका लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो बेटा काय का कैसा फायदा, कोई फायदा नहीं। सिंपल एग्जांपल है, आपके पास पॉकेट मनी 2000 की है, ठीक है, ऊपर से 2000 की, चलो मम्मी ने इस बार लॉकडाउन में डांट पड़ के 2000 की पॉकेट मनी लगा दी आपको, आप लोग बहुत जिद कर रहे थे, टीचर ने 5000 की बुक्स लेने को बोल दी, तो टीचर इरिटेट ही कर रहा है ना, किधर से लाओगे बुक, चोरी करोगे, डाका डालोगे, नहीं ना, एंड ऑफ द डे स्ट्रेस में आओगे ना। सेम चीज हो रही है बेटा यहाँ पर। तो ये एविल ही हुआ ना, टीचर ने एविल था, क्रूअलता दिखाई अपनी, आपके परिस्थिति को नहीं समझते हुए। एंड ऑफ द डे टीचर्स आर गेट स्क्रूड अप बाय यू पीपल, राइट? एंड ऑफ द डे यू गो एंड बिच देम। सो एनीवेज लेट्स नॉट डिस्कस इट। एंड ट्रांसपिरेशन इज एन इसेंशियल एविल। व्हाई इट इज एन इसेंशियल एविल? क्योंकि वो जरूरी है, बट वो एविल है क्योंकि व्हाट अबाउट इन ज़ेरोफाइट्स, व्हाट अबाउट वैसे प्लांट जो ड्राई रीजन में पाए जाते हैं। समझ में आया? मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो इट वॉज बेस्ड ऑन हूम? कर्टिस। एक और साइंटिस्ट था, आई राइट इट बाय ब्लैक पेन, प्लीज डू मेक अ नोट ऑफ इट। इनटू स्टीवर्ट्स, लिख लेना बेटा, अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट्स, उसने क्या कहा? ट्रांसपिरेशन इज कर्टिस तक तो ठीक था, ये क्या बोल रहा था? इट इज एन इसेंशियल एविल। बट स्टीवर्ट सेज दैट ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल। ये वैसा एविल है बेटा जिसको कोई भी अवॉइड ही नहीं कर सकता, ये होना है तो ये होकर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन अगर नहीं होगा तो क्या फूड बनेगा? क्या नहीं बनेगा ना बेटा, नहीं बन पाएगा ना। मानते हो ना ये बात? आप लोग कहोगे यस मैम मान गए। तो ये वाली चीज है, ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल। क्यों? क्योंकि हम लोग चाह के भी ट्रांसपिरेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। ट्रांसपिरेशन जरूरी है बेटा जी, और उसके हर प्रोसेस के लिए उसका उतना काम बनता है। समझ में आया? These were the some beautiful facts about transpiration. Is it over? No, beta ji. How photosynthesis and transpiration are correlated. After this, I'm going to show you the beautiful concept about them, and then we will move on towards the today's very important hot topic, that is long distance transport. Clear? बता दो? चलो. So there comes a concept that is transportation or transpiration and photosynthesis is a कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ट्रांसपिरेशन जरूरी है, इसीलिए ये स्टेटमेंट कहता है कि ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज। फोटोसिंथेसिस के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर? वी रिक्वायर CO2 एंड H2O। आप लोग ये बात मानते हो? हाँ, आप लोग कहोगे यस मैम मानते हैं हम लोग ये बात, और ये बात जरूरी है कि ये जरूरत होती है। ठीक है, वाटर कहाँ से मिलेगा? CO2 कहाँ से मिलेगा? जब वो ट्रांसपिरेशन होगा। Transpiration मतलब opening of stomata, losing of water. When water loses, other mineral nutrient loses, CO2 comes inside, oxygen goes outside. Remember that process? I guess yes. So that happens. So what does it do? Transpiration have not only one purpose, it has many other purposes also. As I have told you previously, it is not required for only one need, it is required for many beautiful concepts and many beautiful purposes. The very first purpose is creates transpiration pull for absorption and transport in plants. Absorption pull, what is this? Ma'am, every time new words, we are fed up. बस बेटा खत्म कर रही हूँ चैप्टर, थोड़े दिन और रुको, एक आध दिन और हार्डली। मानते हो आप लोग ये बात? समझना बेटा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन यहाँ से होगा, लीफ पे स्टोमेटा होता है, ट्रांसपिरेशन हो गया। क्लियर?
अब इसको जरूरत है पानी की, पानी की। अब बारिश भर भर हर 24 घंटे बरसात होगा? बिल्कुल नहीं। यू आर एन आर मैम किड्स, आप लोग बोलोगे ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा? रूट्स, ये रूट्स है, रूट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा? रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स क्या करेंगे? एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, और जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे ये रूट हेयर्स, देन देयर इज नीड ऑफ वाटर। एंड कहाँ पे नीड ऑफ वाटर है? यहाँ पे ना बेटा जी। So this is what? This is called as what? Transpiration pull. Requirement of water at that side due to transpiration is called as what? Transpiration pull. And for this lead to what? Absorption. रूट ने क्या किया? एब्जॉर्ब किया पानी को। आप लोग कहोगे यस मैम। एंड ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, इस पानी को फिर ट्रांसपोर्ट हुआ लीफ तक। एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम, यू आर ऑलवेज राइट। एंड इट ऑल्सो सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। यहां से बेटा जी पानी लॉस हुआ, अब लीफ को वापस से फूड बनाना है। अगेन रूट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर विल ट्रांसफर वन बाय वन इनटू टू द लीफ, and what? Glucose will be maintained, same chlorophyll, with the help of chlorophyll, and you will light. This was the reaction of photosynthesis for the process by making their own food. Accepted. Transport minerals from soil to all parts of the plant. अगर बेटा जी यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब हो रहा है? नहीं ना बेटा जी, यहाँ पे और सारी चीजें, और सारी मिनरल्स भी तो एब्जॉर्ब होंगी विद द वाटर. सो दिस इज व्हाट इट सेज, इट इज आल्सो हैपनिंग ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. क्लियर? Cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 degrees Celsius by evaporating cooling. Evaporating cooling एक beautiful concept है जो मैं आपको बताती हूँ बेटा. अगर एक लीफ है तो लीफ पे जो बहुत ज़्यादा उसकी वार्मनेस थी, what happened? There is evaporation due to excessive temperature. Again that water condenses, again it vaporizes and falls as a dew drops. तो क्या हुआ? Cool leaf surface, अगर transpiration हुआ, वो वाटर जो लीफ के अंदर था वो लॉस हुआ, फिर मॉइस्चर ठंडा हुआ, वो कंडेंस हुआ, वो वेपर बन के लीफ पे गिरा ना, तो वो क्या कर रहा है? लीफ के टेम्परेचर को कम कर रहा है. हाँ, किस प्रोसेस से? इवेपोरेटिंग कूलिंग से. और ये कितना कम कर सकता है बेटा जी? तो 10 to 15 डिग्री कम करता है. ठीक है, जैसे कि बेटा बाहर मैं बताती हूँ आपको, आप लोग मेरे छोटे बच्चे हो ना, तो लीफ में वाटर प्रेजेंट है, लीफ स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट हो तो ओपनिंग वही होगी, स्टोमेटा लीफ पे प्रेजेंट है, वहां से क्या होगा बेटा? ट्रांसपिरेशन. जब ट्रांसपिरेशन हुआ बेटा जी, जब ट्रांसपिरेशन होगा, सुनना ध्यान से, तो क्या होगा? वाटर निकलेगा बाहर लीफ से, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद व्हाट डज इट डू? बाहर का टेम्परेचर लो है, इट कंडेंस, वो वापस से लिक्विड के फॉर्म में बनेगा और वो ड्यू ड्रॉपलेट्स बन के आपको पेड़ों पर दिखेंगे. एंड दैट इज द प्रोसेस, ब्यूटीफुल प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज इवेपोरेटिव कूलिंग. एंड इस मेथड से हम लोग लीफ के सर्फेसेस को भी कूल कर सकते हैं टू रिड्यूस द टेम्परेचर एज 10 to 50 डिग्री सेल्सियस. समझ में आया? एंड मेंटेन्स, इट ऑल्सो मेंटेन्स द शेप बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग द सेल टर्जिड. Due to intake of water, due to loss of water, turgidity is maintained. It is happening by transpiration, endoosmosis, exoosmosis वाला concept, and it leads to what? Maintenance of turgidity. Previous classes में मैं आपको बता चुकी हूँ what is turgidity, what is endoosmosis, what is exoosmosis, why do cells become turgid, why do cells become flaccid, why do cells normalize. There is no other goal, you have to remember it. Clear? चलो. Now another thing is, आपको पता है जब भी एक plant develop होता है या फिर एक plant जब grow होता है बेटा, when it grows, it basically requires water. It requires water, not only water, no बच्चा, for photosynthesis to prepare their own food instably, उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है पानी की, क्योंकि CO2 तो मिल जा रहा है, but what about water? So this is what happened. And actively photosynthesizing plant has an insatiable need for water. उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है पानी की. So that जब वो plant grow हो रहा है, उसको photosynthesis अपना करेगा, nutrient में बनेगा, तभी तो वो plant proper functioning दिखा पाएगा. So उसके लिए उसको किसकी जरूरत होती है बेटा जी? For water. And but ये photosynthesis कम भी हो सकती है growing plant की. आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है, बहुत कमा रहे हो, पूछो मत. नहीं, आप जब स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, पहले स्ट्रगल से समझना. आप स्ट्रगल कर रहे हो और आपको कुछ ना कुछ चाहिए, आपको पैसे चाहिए, you need money, you actually need money.
सो दैट इज व्हाट आपको बहुत ज्यादा जरूरत है. यू हैव टू बाय होम, यू हैव टू बाय कार, यू हैव टू गेट मैरिड, यू हैव टू गेट सेटल, यू हैव टू पे योर लोन्स फॉर योर एजुकेशन, यू हैव टू डू लॉट मेनी वर्क एंड आई एक्सेप्ट इट. देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डाउट इन इट. यू हैव टू डू दैट. सो यू रिक्वायर व्हाट? यू रिक्वायर मनी. बट अगर पैसा ही ना मिले तो nobody gives you the money, you don't earn, you don't get a job proper, your parents don't give you money, आपका वो काम लिमिट हो जाएगा. आपका घर, आपका गाड़ी, आपका एजुकेशन, आपके पेमेंट लोन्स, आपके सब कुछ रुक जाएंगे बेटा. किस वजह से रुकेंगे? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ व्हाट? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मनी. सो सेम थिंग विल बी स्टॉप्ड व्हेन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर. एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड. व्हेन देयर इज नो वाटर, photosynthesis is limited by available of water which can be swiftly depleted by transpiration. वो कम हो सकता है अगर ट्रांसपिरेशन. और सपोज उस समय आपको पैसे की जरूरत है एंड देन अगेन योर ब्यूटीफुल टीचर कम्स एंड टेल्स यू बेटा बाय व्हाइट एंड फैरो फॉर दिस सेशन. मतलब एक ब्यूटीफुल मेडिसिन की बुक डेविडसन आपसे मंगवा ली, 3000 की बुक है. अगर वो बुक नहीं हुई तो आप सेमिनार नहीं दे पाओगे एंड यू विल बी फेल फॉर योर नेक्स्ट सेमेस्टर. Will it be acceptable for you? Will it be? Already you have so much of load present with you. One your beautiful teacher came and she told you to buy a beautiful book of medicine, that is Davidson, but वो book की price 3000 है. Are you able to buy that? You're not able to buy that. Why? Because you don't have money and it is depleted on behalf by your teacher. It is depleted on behalf by transpiration. Connect the link बेटा. कड़ी से कड़ी जोड़ो, पिक्चर दिखेगी. समझ में आया? फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर. जितना पानी कम है, जितना पानी है या नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस को लिमिट करेगा. आपकी ग्रोथ डिपेंड करेगी कितने पैसे हैं आपके पास. सेम चीज मैंने बोली थी आपको, कंपेयर कर लो. ठीक है? विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड. वो कम हो सकता है किससे? ट्रांसपिरेशन से. किससे कम होगा बेटा? ट्रांसपिरेशन से. समझ में आया? क्लियर? एंड वो कम हो सकता है क्यों? जब आपके टीचर आपको बुक खरीदने के लिए बोल दे. क्लियर? चलो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको पता है ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, देयर आर वेरियस रेन फॉरेस्ट. क्लियर? एक्सेप्टेड? आप लोग कहोगे यस मैम एक्सेप्टेड. इनका जो टेम्परेचर होता है वो ह्यूमिड क्यों होता है? इट इज बिकॉज लिखना द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू दिस वास्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ. बेटा पानी पहले रूट से लीफ तक गया, मानते हो आप लोग ये बात? फिर वापस लीफ से एटमॉस्फेयर में आया ड्यू टू थ्रू व्हाट? थ्रू ट्रांसपिरेशन. जब वो वापस से लीफ से एटमॉस्फेयर में आ गया तो उसका ट्रांसपिरेशन हुआ एंड अगेन इट गेट कंडेंसेस एंड इट कम्स बैक टू द सॉइल. फिर सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट. So this is what the humidity of rainforest is maintained by this beautiful cycle. आओ मैं आपको ये साइकिल पिक्टोरियल वे से समझा दूँ. समझना ये सेशन में डाल दूँ. चलो, ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, पिक्टोरियल से समझना. क्लियर? ठीक है? ध्यान से पढ़ोगे, मेडिकल तक कोई नहीं रोक सकता. मतलब बाजू वाला मेडिकल नहीं, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है. बकवास से पढ़ोगे कोई बचा भी नहीं सकता डूबने से. आई गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट. बाकी अपनी अपनी कहानी सोच के पढ़ना चालू कर दो. ठीक है? बार बार नहीं बोल सकती और ना ही बार बार आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ. दीज आर स्पेशल क्लासेस जो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है. क्लियर? तो बेटर है कि कम से कम ये सेशंस कंप्लीट करें और चैप्टर पे ध्यान दें. एज पर आपके क्लासेस चल रहे हैं बेटा, रेगुलर क्लासेस, आपकी लाइव सेशंस होते हैं and plus मेरे lectures आपको लगाए जाते हैं. So do get motivated and get back to your study, because one day if I get irritated by your this loose attitude, then and there it's gonna pay you actually very hard. So 11th वालों pack your bags and start studying. ठीक है? चलो, पिक्टोरियल मेथड पे ध्यान देना. वो लास्ट वाला पॉइंट क्या कहता है? बहुत हो गई मोटिवेशन, आज के लिए इतना काफी था. थोड़ा जोश भी दिलाना पड़ता है ना बच्चों को, वरना आपको सब कुछ लगेगा सब कप ऑफ टी ही है. सॉइल है ये. ठीक है? समझना वाई रेन फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी मेंटेन कैसे होती है, समझना बेटा जी. सॉइल में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर. इस वाटर को कौन एब्जॉर्ब करेगा? सही से बताना बेटा फटाफट. जिसको पता है, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखें. रूट. इस रूट के पास ये छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं,
लिख लो जिसको मॉर्फोलॉजी याद नहीं है. दिस रूट हेयर्स विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल. मानते हो आप लोग ये बात? एक्सेप्टेड. इसने पानी एब्जॉर्ब किया, यहां से रूट हेयर्स को पानी मिला. मैं ये रेड वाले से वाटर एब्जॉर्प्शन दिखा रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे एक स्टोमेटल ओपनिंग है, ब्लू वाले से दिखा रही हूँ, ध्यान से समझ लो. इस ग्रीन लीफ पे एक स्टोमेटल ओपनिंग है जहां से लॉस ऑफ वाटर, वैसे सब पे मैं यहाँ टॉप की बात कर रही हूँ, जहां से लॉस ऑफ वाटर होगा, ठीक है. इस लीफ से सारे पानी खत्म हो गए, तो इसको वाटर की जरूरत होगी क्या? होगी ना बेटा? मानते हो ना ये चीज? आप लोग कहोगे यस मैम मान गए ये चीज, ठीक है. रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया था, अब इसको ट्रांसपिरेशन पूल मेंटेन होगा. यहाँ पे लिख लेना देयर विल बी जनरेशन ऑफ, क्योंकि लिखने में ज्यादा यकीन रखते हो. देयर विल बी जनरेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, जनरेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल. After generation of this transpiration pool, what's gonna happen? What's the next story? रूट हेयर को टिक टिक होगा, रूट हेयर पानी पहुंचाने का काम करेगा फटाक से, नो वेस्टेज ऑफ टाइम, और ये पानी पहुंच गया. कैन यू सी दिस वाटर? लीफ ने अपना फूड बनाया, मस्त एंजॉय किया, खाना पीना, न्यूट्रिएंट्स पास करवा दिए इधर 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 एक्सेट्रा. अगेन देयर इज टोमेटल ओपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम. अब मैं ग्रीन वाले से दिखाती हूँ, ठीक है, समझना. अगेन देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर H2O. लीफ से होगा वाटर लॉस. ये जो पानी वाटर सॉइल में प्रेजेंट था वो रूट ने एब्जॉर्ब किया, फिर से वो लीफ को मिला, फिर से लीफ ने वो वाटर को लॉस किया थ्रू व्हाट? थ्रू ट्रांसपिरेशन. एक्सेप्टेड? फटाक से बोलो एक्सेप्टेड, ठीक है. चलो, ये जो वाटर लॉस हुआ फिर से ये कंडेंस होगा, condenses and then again it returns back to soil. मानते हो ये चीज? इवेपोरेटिव कूलिंग, ये देखो यहाँ पे लिखी है. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज, बेटा मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ इसलिए आई एम नॉट गोना रिपीट द कॉन्सेप्ट. दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज इवेपोरेटिव कूलिंग, ठीक है. चलो, पानी आ गया वापस से, फिर वापस से सॉइल में जाएगा. हिस्ट्री रिपीट्स, सेम वाटर. कैन यू सी अ काइंड ऑफ साइकिल इन देम? ये कुछ साइकिल दिख रही है आपको? Isn't it a cycle? It is. So such type of water cycle helps to maintain humidity in the plant cells. Helps to maintain humidity in plant cell. क्या maintain करने की जरूरत है? Humidity. Try to maintain humidity in the plant cells. समझ में आया बेटा? This was the very beautiful concept which was stated for transpiration. Clear? मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपने टेस्ट में ये क्वेश्चन देखा होगा और जिनको प्रीवियस ईयर सॉल्व किया होगा उनको भी ये क्वेश्चन देखा होगा. विच इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर ट्रांसपिरेशन? देखा था? ऑब्वियसली देखा था, क्योंकि बेटा पिक्चर यहाँ दिखने वाली थी ना, तो कुछ कुछ फ्रेश क्वेश्चंस भी तो डालते हैं. क्यों? थोड़ा दिमाग टिकटिकाए तभी तो लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं. चलो, सो देयर इज अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज पोटोमीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द ट्रांसपिरेशन. लिखना, मिटा दो इसको फिर मैं लिखवाती हूँ. चलो मिटाओ, come on. So I told you there is a device which is used to measure a transpiration, जिसको बेटा जी हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग पोटोमीटर कहते हैं. तो लिख लेना, an apparatus used to measure transpiration is called as potometer and it works on the principle of rate of water absorption is equal to, लिखना, rate of water absorption. कितना पानी उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही पानी वो लॉस करेगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो ये वो डिवाइस है जो ये दोनों चीजें मेजर करती है एंड बताती है कि हाउ दी पोटोमीटर मेजर्स दी ट्रांसपिरेशन. क्लियर? जितना पानी एक प्लांट सेल एब्जॉर्ब करेगा उतना ही पानी वो लूज करेगा. बेस्ड ऑन दिस ब्यूटिफुल प्रिंसिपल दिस पोटोमीटर वर्क्स ऑन. ठीक है. Another device which is called as porometer, it is used to measure किस एरिया में stomata present है. On which area do the stomata is present on the leaf surface. तो अगर stomata वहाँ present है तो उस surface पे transpiration ज़्यादा होगा. So basically it helps to measure which kind of surface will show more amount of transpiration. Accepted? आप लोग कहोगे yes ma'am, accepted. So an apparatus used to measure area of the stomata on the leaf. Clear? This is what it is. Another concept is
cobalt chloride test. This test is made used comparison कि किस सरफेस पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, और ये कैसे किया गया, टू सरफेस लीफ के दो सरफेस पे ट्रांसपिरेशन देखा और ये कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट उस पर ऑन वर्क करवाया और फिर पता किया कि किस सरफेस पे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है. सो इट इज नोन बाय कोबाल्ट. अगर आपसे कोई पूछे what is the method to know that which surface, what is the method used for comparison transpiration of two surface, so ये compare करने के लिए हुआ था. कैसे आप कंपेयर करोगे ट्रांसपिरेशन ऑफ टू सर्फेसेस में, किसका लॉस, किसका ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपिरेशन किस सरफेस में ज्यादा हो रहा है. सो यू विल डू इट बाय वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट. समझ में आया बेटा जी? दिस इज व्हाट फ्यू फैक्चुअल थिंग्स अबाउट ट्रांसपिरेशन. क्लियर? दैट्स इट. So that's all for today. Thank you very much. Do watch the session completely and have a good day, and please watch the session if you like it. Subscribe the channel and like the videos. Okay, thank you very much. Next class again I'm going to have a revision in your classroom course beta ji, classroom course. Okay, and then we will move on towards the further topic, that is long distance transport. Clear? Thank you very much.